Hello everyone, welcome you all today on behalf of our prestigious school, Moga Devi Minda Good Memorial. morning, sir. Good morning. I, Krishan Good Malik, morning. got the opportunity to host today's webinar on drug and youth. In this webinar, we are having many activities in sequence. First of all, I would like to call our student Kalpana to start webinar. Kalpana, please join us on screen. The sparkle of the fire is the witness of your worth. The silent fluence of the water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. Rhythmical movement of the moon is the witness of your perfection. Yeah, My Kalpana. words, my soul are the witness of oneness. A very pleasant morning to one and all. Honorable guest Mr. Sajjan Kumar, human rights activist and UN awardee, special guest Dr. Matthew Varghese, guest of honor Mr. MC Joshi, respected teachers, webinar welcomes you all on behalf of MDMMS family. This program, titled as Drugs and Youth, is an initiative of our school. I strongly assure you that this program will be experience and source of inspiration been increasing immensely among our society today. Drug addictions can only restrain us from accomplishing goals or dreams in life. Addiction can trap anyone. It can lead to harming one's body, causing problems in family, and contribute to the delinquency in the society. To present a poem on drugs destroy, I request Anjani to recite it. सुप्रभात। मैं अंजनी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खामोश चीख। सन्नाटों को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को। अंधेरे कमरे से शायद वो आजादी चाहता था। उसकी आवाज में कोई इनकलाब नहीं था। जो मांग रहा था वो कोई शबाब नहीं था। मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था। खामोश सुन रहे थे सब, बस वो ही एक बुनियादी था। टूट रहा था उसका एक एक अंग, वो खुद ही कारण था अपनी बर्बादी का। वो लत उसे उसके दोस्तों ने ही लगवाई थी, जो ना चाहकर भी टूट न पाई थी। हो रहा था तन्हा वो अपनों से, कर रहा था उस आग में जो खुद उसने लगाई थी। कल का उजाला आज अंधेरे में था। बदल गया था वो जब से नशे के बाजार में था। इस कदर फंस गया था वो अपने ही जाल में, अपना ही घर बेच रहा वो धोखे के व्यापार में था। घूम रहा था वक्त बीत हुआ उसके सामने, खुद को बदल नहीं सकता था वो हालात लाचार में था। अचानक हर शोर खामोश हुआ, अब फिजाओं में दौर हवाओं का था। खुला दरवाजा तो नजर आया, देख जिसे सबको पसीना आया। झूल रहा था जिस्म एक रस्सी के सहारे, छोड़ चुका था वो दुनिया जो अब तक तड़प रहा था। शायद इस हरकत से उसको सुकून मिला, चंद लम्हों के माहौल में अजीब सा जुनून आया। पहले एक रो रहा था, अब कईयों को रोते वंश के चिराग मैंने कई परिवारों को खोते पाया। अगर जागती है जमीर तो अब भी जाग जाओ, वक्त आ गया है दूर इस बुराई से भाग जाओ। संभल जाओ कि राह अभी बाकी है, तमाम उम्मीदें हैं तुमसे जो पूरी करना बाकी है। तमाम उम्मीदें हैं तुमसे जो पूरी करना बाकी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया अंजनी, बहुत बढ़िया।
Because Thanks. very good, Anjani. See all the students keep in mute positions. Okay, all the students keep it in a mute position. Mr. Malik, please mute everyone. Okay. Yeah, Kalpana. Thanks, Anjani. You really boost up our morale. Delete drugs or they'll delete you from this world. Keeping alive this notice, here comes Rishika for a poem with addicting spirit. Good morning to all the dignitaries present here. Today, on this special occasion, I'm going to recite a poem. My poem is Two Drugs. You gave me such pleasure, but it came at a bigger cost. My family, friends, and dreams, all this I've lost. Once you had your grasp in me, there was no way I could break. Okay. Rishika, unmute yourself. Rishika, unmute करें, please. And it is requested to all students, please keep your mic mute. Good morning to all the dignitaries present here. Today, I'm going to recite a poem on this special occasion. My poem is Two Drugs. You gave me such pleasure, but it came at a bigger cost. My family, friends, and dreams, all this I have lost. Once you had your grasp in me, there was no way I could break free. Dirty deeds and dirty tricks, all I would do to get my next fix. So many things I now regret, but the biggest regret is the day we met. I had such aspirations and dreams to pursue. Now, to get high, all that I want to do. Thank you and have a nice day. Thanks, Rishika. It is our great honor to have special guest Dr. Matthew Varghese with us today. Sir, you hardly need an introduction. You are a sculptor of humanity. With equal pleasure, I would like to request you, sir, to say a few words. Sir, please. Very good morning to everyone. Today, in fact, we are very honored to have Mr. Sajan Kumar, the PRO to IG HISA. Thank you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, he's a well-known figure in HISA, a police officer devoted for the last 27 years for the betterment of society, especially on human rights and anti-drugs campaign among the youth. And twice he was awarded with the Global Human Rights Protection Award by none other than the United Nations. And he has organized more than 2,000 awareness campaigns across Haryana, and he had come to our school as well. 3 lakh students have taken oath no to drugs under him. And dear students, we are very privileged to have such a versatile officer like him with us. And I thank IG HISAR also for this. On behalf of all of you, the management, staff and students, I welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. I also welcome Sri Rajesh Bansalji, one of our trustee members here with us, and Mr. MC Joshi, the school director, also with us. And our students, all of you are a very blessed lot to have such a program during this lockdown, that also on International Anti-Drugs Day. So, listen carefully to what Mr. Sajan Kumar is going to speak to you, and practice, okay, practice in your life. And this drug is a worldwide phenomenon among the youth. And we have come across so many lives have been spoiled. The family life has spoiled. And people, not only in one country, it is a worldwide phenomenon.
and the students spend a lot of money, and then they start illegally. All these things, Mr. Sajan Kumar is going to speak about the causes of it and the effect of it and how it spreads and how you can prevent from this menace which is eating up the youth of today. So once again, on behalf of all of you, I welcome Mr. Sajan Kumar and all the dignitaries and all the students. And I know that we have a limitation of accommodating all of you students. I know that there are so many students in the waiting list. We are recording this one, and this will be sent to all the senior students in their WhatsApp group. So on behalf of the MDMMS, I once again welcome you, sir. Please. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Your words truly enlightened us. Get high of grades, not on drugs, because drugs drag you down. Now, I would like to request Pooja for some facts on drug consumption. Good morning, everyone. Today, I'm going to tell you some facts about drugs and youth in India. More than 8,60,000 young men in India between the ages of 15 to 35 take some form of drugs. Second, heroin is the most preferred, used by 53% of all addicts. Third, border security officials routinely seize drugs near India's border with Pakistan. Fourth, the opioid dependence survey reported higher percentages of drug abusers in India in states like Tamil Nadu, Gujarat, Haryana, Punjab, Delhi, Andhra Pradesh, and many more. Fifth, the UN report claims that drug use increased by 30% in India the last decade. Thank you and have a nice day. Thanks, Pooja. You enhance knowledge. Our guest, Mr. Sajjan Kumar, Public Relations Officer to IG Hisar, is a versatile personality. Sir, in Haryana Police, 7 East, Master Human Rights Haryana, more than 3 lakh students has taken oath for not to drug. Sir, you are truly an inspiration to us. From the depth of my heart, I would like to request, sir, for words of wisdom which will radiate a source of energy within us. Sir, please. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बेटी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छी एंकरिंग की आपने, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और प्राचार्य महोदय और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं जोशी और कृष्ण कुमार मलिक, सबका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इस वेबिनार में मुझे बुलाया। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है आज 26 जून सारे विश्व में ड्रग और ड्रग की जो तस्करी है उसके विरोध में ये दिन मनाया जाता है। आज के दिन सारी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं और इस गंभीर समस्या के बारे में बात करते हैं। वो चर्चा करते हैं कि इस समस्या से दुनिया को, समाज को किस प्रकार निजात दिलवाई जाए। तो आज हम भी इस वेबिनार के माध्यम से इस विषय पे अपने विचार आपसे शेयर करेंगे। बच्चों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया कि कितना ड्रग्स का जो है हमारे इंडिया में लोग करते हैं, कहाँ से सप्लाई होता है, ये भी बात बच्चों ने बताई। कुछ एक आंकड़े भी प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे और अच्छी बात है। हम प्यारे विद्यार्थियों सीधी सीधी कुछ एक बातें करेंगे कि ये समस्या आखिर क्या है और नशे की तरफ हमारे युवा क्यों जाते हैं और इस समस्या से किस प्रकार हम इस समस्या से समाज को निजात दिला सकते हैं
और इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे युवा समाज के उद्धार के लिए, ड्रग्स से समाज को बचाने के लिए अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। इन विषयों पे हम सीधी सीधी हमारी मदर लैंग्वेज में और थोड़ा हरियाणवी टच भी देंगे, शायद आप ज़्यादा लाइक करोगे, उस पर हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे ये ड्रग्स का जो प्रचलन है, इसमें क्या क्या लोग ड्रग्स लेते हैं। जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन 3 स्टेटों की बात करें तो यहाँ के लोग किस प्रकार का नशा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, 3 स्टेटों की मैंने बात की है, इन 3 स्टेटों में मुख्य रूप से हेरोइन, अफीम, स्मैक, सुल्फा और गांजा, ये मादक पदार्थ हैं, नारकोटिक ड्रग्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा नशे के रूप में कुछ एक ऐसी अवैध दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं, सरकार ने जिसपे जो बैन की हुई है सरकार द्वारा, ऐसी कुछ एक ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो भी कुछ एक लोग इस्तेमाल करते हैं नशे के। अब हम बात करते हैं कि लोग नशा क्यों करते हैं, नशे की तरफ क्यों जाते हैं लोग। इस बात पे ये ज़रूरी है, इस पे गौर करना चाहिए कि नशे की तरफ हमारे युवा क्यों जाते हैं, समाज के लोग नशे की तरफ क्यों जाते हैं, आकर्षित क्यों होते हैं। इस विषय पे बात करेंगे। देखते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों का भी दौरा किया है और वहाँ लोगों से बातचीत की है। हमने पाया कि छोटी छोटी उम्र के युवा, कोई 12 साल का बच्चा, कोई 18 साल का बच्चा, युवा उसमें ज़्यादा हैं और वो एडिक्ट हो चुके हैं और नशा मुक्ति केंद्रों में उनके घर वालों ने उनको एडमिट करवाया हुआ है। तो युवा नशे की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो है कि स्ट्रेस। जब आदमी पे कोई परेशानी आती है, कोई विपदा आती है, या वो कहीं विचलित होता है, तो वो नशे की तरफ भागता है कि नशा थोड़ा कंज्यूम करूंगा तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कुछ एक लोग शौकिया तौर पे भी, उनको कोई परेशानी नहीं होती, शौकिया तौर पे भाई ये करता है तो मैं भी करूँ। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात की है, उन्होंने बताया कि सर मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं थी, मैं कुछ एक बड़ी क्लासेज के बच्चों के साथ बैठता था और वो बड़ी क्लासेज के बच्चे इस प्रकार का ये ड्रग्स वगैरह लेते थे, तो उनकी कंपनी में मैं बैठा तो धीरे धीरे मैंने भी फिर शुरू कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इसका आदी हो गया। तो कंपनी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक इसमें सबसे बड़ा रोल है नशे की, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, वो कारण ये है कि घर का माहौल मैटर करता है। कई बच्चों को घर में अच्छा माहौल नहीं मिलता। घर में अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चा गलत रास्ते की तरफ जाएगा। घर में अच्छे माहौल का मतलब भी घर में बच्चे को लाड दुलार ना मिलना, बच्चे के साथ मिसबिहेव, उस पर अत्याचार करना, उसको सम्मान ना देना, या घर में कहीं कोई आर्थिक तंगी, या घर में पापा मम्मी का हर रोज का झगड़ा, या बड़े भाइयों द्वारा छोटे भाई को टॉर्चर किया जाना, इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो घर में अगर बच्चे को सम्मान नहीं मिलेगा, लाड दुलार नहीं मिलेगा, उसकी केयर नहीं होगी, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो बच्चा ठीक रास्ते पे नहीं जाएगा। तो घर का माहौल अच्छा होना बड़ा जरूरी है। एक कारण इसमें और भी है, वो ये है कि आज हम देखते हैं कि मानसिक रोग बढ़े हुए हैं, मानसिक रोग बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं।
और मानसिक रोगों के बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। मानसिक रोगों के लक्षण के बारे में भी लोग नहीं जानते। मानसिक रोग भी इसका एक मुख्य कारण है। तो आपको ये जानना भी जरूरी होगा कि मानसिक रोगों के लक्षण क्या क्या है। देखो, मानसिक रोग क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कुछ एक केमिकल होते हैं। कुछ डॉक्टर हार्मोन्स कह देते हैं, कुछ केमिकल कह देते हैं, डॉक्टरों की लैंग्वेज है। जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं केमिकल, तो हमें इस प्रकार की समस्या आती है, हम मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। और जब मानसिक रोग होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें हमें फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम उदास रहेंगे, जो हम खुश नहीं रह पाएंगे। जो खुशी देने वाले हार्मोन्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। तो जब आदमी बेचैन होता है, उसको खुशी नहीं मिलती, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो परेशानी की वजह से वो चाहे युवा हो, और जब इस तरह की समस्याएं आती है तो फिर वो ड्रग्स की तरफ दौड़ते हैं, नशे की तरफ जाते हैं। शायद ये कंज्यूम कर लूं, वो कहते हैं कि शायद ये ड्रग्स मैं कंज्यूम कर लूं, शायद मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, और वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमने 3-4 मुख्य कारण बताए। इनमें हमने बताया कि कंपनी का भी असर होता है, घर का माहौल और मानसिक रोग। एक कारण एक और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि कई बार बच्चे अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। अपने विवेक, अपना उनका कुछ फैसला नहीं होता, और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे भी बहुत जल्दी लोगों की बातों में आके और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने आप को इंटेलिजेंट समझना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक जिम्मेवार युवा हूँ, और मैं कोई गलत आदमी है तो उसको भी ठीक रास्ते पे लाने का मैं प्रयास करूँ, मैं किसी की बातों में ना आऊँ। अपने आप पर विश्वास भी जरूरी है। तो ये कुछ एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ भागते हैं। इसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेस की वजह। अच्छा, आज एक समस्या और भी है। आज समस्या क्या है कि लोग बड़ा दिखावा करते हैं। देखते हैं विवाह शादी में शराब की स्टॉल लगाते हैं, और स्टॉल लगा के शराब की दिखावा करते हैं, बड़पन का, जो मैं मानता हूं कि वो नैतिक मूल्यों का हनन है। देखते हैं आज बर्थडे पार्टी पर भी शराब ऑफर करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम देखते हैं हमारे इस उम्र के बच्चे, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, इस उम्र के बच्चे भी क्या करते हैं, जब उनका बर्थडे आता है तो अपने पापा जी से पैसे लेते हैं कि पापा जी हमारा बर्थडे है, और हम अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अपने पापा से पैसे लेकर के और अपने दोस्तों के साथ, पता है कहाँ जाते हैं? कैफे हाउसों पे, होटलों पे, ढाबों पे। और वो जो लोग हैं, ये कैफे हाउस हैं, इस तरह के जो रेस्तरां हैं, होटल ढाबे हैं, ये अपराध के अड्डे हैं। ये क्या करते हैं? ये इस तरह के जो लोग हैं, ये बच्चों को फिर ड्रग्स की तरफ ले जाते हैं, उनको ऑफर करते हैं, ड्रग्स, वाइन वगैरह ऑफर करते हैं, और इस तरह से हम बर्थडे होटल ढाबों में मनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों में गलत आदतें बच्चों को पड़ जाएंगी। तो आप सब बच्चों से ये प्रार्थना मैं ज़रूर करूँगा कि जब भी आपका बर्थडे आए, बर्थडे अपने घर मनाओ, अपने पापा मम्मी के साथ मनाओ, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाना तो अपने घर पे बुलाओ, और अपने घर पे बुलाओ और अपने घर पे अपना बर्थडे मनाओ। होटल ढाबों पे जाने का कोई औचित्य नहीं, उससे बचना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि नशे की तरफ बच्चे हमारे युवा क्यों जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नशे से
समाज को क्या नुकसान है? नुकसान तो सारा ही नुकसान है। क्या नुकसान, हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएं तो सबसे बड़ा नुकसान तो है शारीरिक नुकसान। कोई भी ड्रग हम लेंगे तो हमारे शरीर को और दिमाग पे प्रतिकूल असर डालेगा, डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, शारीरिक नुकसान। दूसरा, आर्थिक नुकसान। ये ड्रग्स वगैरह है, ये बहुत कॉस्टली आता है, तो इससे आर्थिक नुकसान। तीसरा नुकसान, सामाजिक नुकसान। समाज को भी नुकसान है। अरे जिस आदमी की जिम्मेवारी थी, उसने समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए काम करना चाहिए था, आज वो एडिक्ट है, उसका परिवार पीड़ित है, उसके बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती। समाज को नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। अगर एक आदमी भी कोई नशेड़ी बन जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, तो वो नुकसान सिर्फ उस आदमी और उसके परिवार तक ही सीमित नहीं है, उससे सारा समाज प्रभावित होता है। चौथा, ये नशेड़ी नशा करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। आज जितने भी क्राइम समाज में बढ़े हुए हैं, चाहे वो रेप हो, गैंग रेप हो, चोरी हो, लूट खसोट हो, उसमें ड्रग्स का, नशे का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस नशे ने सारे समाज में बड़ी अफरा तफरी मचा रखी है। हमारे समाज में नहीं, अपितु सारी दुनिया में। तो हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें और इस बीमारी से दूर रहें। इससे नुकसान बहुत है। अब हम बात करेंगे कि इस नशे से किस प्रकार हम बच सकते हैं। नशे से बचने का उपाय क्या? नशे से बचने का उपाय सीधा सा है कि घर में तो अच्छा माहौल मिले बच्चों को। जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें इस बात पे। घर में बच्चों को अच्छा माहौल मिले, और बच्चों की भी जिम्मेवारी है, सभी बच्चों की जिम्मेवारी है कि वो सारी बातें अपने घर बैठ के अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास सारी बातें शेयर करें। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के पास नहीं बैठते, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के सारी बातें शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? गलत है। तो सब बच्चों की जिम्मेवारी है, आधा घंटा अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास लगाएं और स्कूल की, आसपास की जो भी बातें हैं सारी बातें शेयर करें। दूसरा, नशे से बचने का उपाय। दूसरा उपाय ये है कि अपने आप पर विश्वास रखें। जैसे हम जाते हैं बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, और हम युवाओं से पूछते हैं कि युवाओं, आप ये बताओ, नशे के बारे में, ड्रग्स के बारे में आपका क्या नियम है? क्या आपने कभी सोच विचार किया है? हम क्वेश्चन करते हैं कि युवाओं, आप ये बताओ, ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में आपका क्या नियम रहेगा? तो लोग पता है क्या कहते हैं? वो युवा कहते हैं सर, इसके बारे में तो हमने कभी चर्चा ही नहीं की, इसके बारे में तो हमने कभी सोच विचार ही नहीं किया। अरे सोच विचार नहीं करोगे तो इससे कैसे बचोगे? सोच विचार करना होगा, हमें हमारी दिशा तय करनी होगी, और हमें फैसला लेना होगा कि मैं एक जिम्मेवार युवा हूं और मैं जिंदगी भर हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार की ड्रग से दूर रहूंगा। ये मेरा स्पष्ट नियम है, मेरा स्पष्ट सिद्धांत है। ये फैसला लेना चाहिए। उसको पता तो हो कि ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में मेरा क्या नियम है। अगर उसका नियम ही नहीं होगा तो फिर वो बचेगा कैसे? नियम बनाना पड़ेगा। तो आप सबके सब बच्चे अपना ये नियम बना लें। कोई आपसे पूछे कि युवाओं बताओ ड्रग्स के बारे में आपका क्या नियम है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे सर, मैं एक जिम्मेवार युवा हूँ, मैं एक जागरूक युवा हूँ, और मैं सर जिंदगी भर हर प्रकार के ड्रग से, हर प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। ये मेरा स्पष्ट नियम है। You all are supposed to rejoin the meeting in just 5 minutes. This meeting will end and I want you all to rejoin the meeting in just 5 minutes. शुरू करते हैं। Yes, sir.
स्टार्ट करो। हम बात कर रहे थे नशे के बारे में और अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि युवाओं की इस समस्या को खत्म करने में क्या भूमिका हो सकती है, इस पे भी शॉर्ट में बात करेंगे कि युवा क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है। युवा इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो युवाओं की जिम्मेवारी है कि वो सारी बातें अपने घर शेयर करें, अपने पापा के पास बैठें और उनसे सारी बातें शेयर करें, उनसे कुछ ना छुपाएं, क्योंकि उनसे बड़े शुभचिंतक आपके कोई नहीं हो सकते। उनसे आप कुछ भी ना छुपाएं, सारी बातें आप शेयर करें। आप सारी बातें शेयर करोगे तो पापा मम्मी को बड़ी खुशी होती है। वो कहेंगे कि मेरा बेटा देखो कितना समझदार है, हमसे सारी बातें शेयर करता है, कुछ नहीं छुपाता, हमारा बेटा बहुत बढ़िया है, सीधा साधा है। दूसरा, आप बच्चों की जिम्मेवारी है, जो भी आप कुछ नया सीखते हैं, जो भी कोई अच्छी बातें हैं, वो जाके अपने घर शेयर करें। वो बात अपने पापा को बताएं, अपनी मम्मी को बताएं, जो भी कोई नई बातें हैं उनको गाइड करना सीखो। अपने पापा को गाइड करो कि पापा जी ये ऐसा नहीं है, पापा जी ये ऐसा है, पापा जी ये ऐसा करो। तो उनको खुशी मिलती है, कहेंगे देखो हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस ही तो सबसे बड़ी चीज है। तो कहेंगे देखो हमारे बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है, हमें गाइड करते हैं। उनको खुशी मिलती है, हौसला मिलता है माँ बाप को भी। आप बच्चे ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी के घर में ड्रग्स से फ्री करने के लिए, समाज को करने के लिए, उसकी शुरुआत पहले तो आपने अपने आपे से करनी पड़ेगी। पहले तो आप खुद ओथ लेंगे कि मैं जिम्मेवार युवा और जिंदगी भर हर प्रकार के ड्रग से दूर रहूंगा, मैं एक युवा समाज सेवी हूँ, मैं एक जिम्मेवार युवा हूँ। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि तो कहीं हमारा लूज आचरण नहीं होगा, हमसे गलती नहीं होगी। का नाम तो आपने सुना ही है। जब स्वामी विवेकानंद की उम्र 14 या 15 साल थी तो उसके परिवार के जो लोग थे, उनके घर में मम्मी थी, उनने कहा कि भी इनकी शादी कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ मैं कि इनकी शादी कर देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 13-14 साल की उम्र में ही फैसला कर लिया था कि मुझे क्या बनना है। सिर्फ 13-14 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मुझे शादी नहीं करवानी, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सारी दुनिया को जगाना है, सारी दुनिया को दिशा दिखानी है, मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। तो पहले से उन्होंने निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार इस उम्र में आप भी अपना ये फैसला ले लें कि मैं एक युवा समाज सेवी, मैं सारी दुनिया को नशे से मुक्त करूंगा, मैं एक जिम्मेवार युवा हूँ, मैं हर बात जिम्मेवारी से करूंगा और हर काम जिम्मेवारी से करूंगा। ये बात दिमाग में रहेगी तो हमसे फिर कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। बात कर रहे थे नशे से मुक्त समाज को नशे से मुक्त करने में बच्चों की भूमिका। बच्चे सबसे पहले तो खुद ओथ लेंगे कि मैं आजीवन हर प्रकार के ड्रग से, नशे से दूर रहूंगा। उसके बाद अपने घर से शुरुआत करेंगे। घर में देखते हैं बहुत से बच्चों के पापा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी करते होंगे, कुछ एक ड्रिंकिंग भी करते होंगे। तो उनके पास एक रिस्पेक्टफुल ढंग से उनसे बात कर सकते हैं कि पापा जी प्लीज़, आप इतनी स्मोकिंग करते हो पापा जी, स्मोकिंग करने से आपके लंग्स खराब हो जाएंगे पापा जी, आपको ये हो जाएगा पापा जी, आप बीमार हो जाओगे पापा जी। स्मोकिंग से तो बहुत सारी बीमारियां होती है, गला खराब हो जाता है और भयंकर डिजीज लग जाती है। तो पापा जी प्लीज आप कम कर दें पापा जी, इसको बंद कर दें पापा जी, धीरे धीरे बंद कर दें आप, मैं आपकी इमदाद करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा इस नशे से, ये नशा छुटवाने के लिए। प्लीज पापा जी आप ट्राई करो। एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आप कहोगे ना तो पापा की क्या हिम्मत है, उसको खुशी मिलेगी, कहेगा देखो मेरा बेटा मेरे स्वास्थ्य के प्रति भी कितना चिंतित है, कितनी चिंता करता है, कितना जागरूक है। और वो धीरे धीरे कम कर देगा, या तो बिल्कुल छोड़ देगा या कम कर देगा। कम भी कर देगा तो भी जीत आपकी, आपने प्रयास किया तो उसका रिजल्ट आपको
मिलेगा। कोई भी आप प्रयास करोगे, किसी भी फील्ड में प्रयास करोगे, तो आपको रिजल्ट 100% नहीं तो 50% अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। दूसरा ये भी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है गांव में आसपास में, तो उन लोगों को भी आप ये बता सकते हैं कि भाई इसको है ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, और ये मानसिक रोगी हो सकता है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, जो दिमाग के डॉक्टर है उसके पास लेके जाओ। ये इतना नशा करता है, बिना नशे के ये रह ही नहीं सकता, बिना नशे के घर से बाहर नहीं निकल पाता, ये मानसिक रोगी मिलेगा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास इसका उपचार है। एक बेटे, कई बार हम देखते हैं बच्चे बड़ा भारी स्ट्रेस ले लेते हैं, दिमाग पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको पैदा किया है, सबका इंतजाम भी उसने करके भेजा है। हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम मेहनत करें, मेहनत करना हमारा काम है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना। तो स्ट्रेस ना लें। कई बार बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, देखते हैं स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे या पीजीओ में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार का कोई स्ट्रेस ना लें। ये सोचना चाहिए कि हम भगवान की संतान हैं, उसने हमें पैदा किया है। हम भगवान की संतान हैं, उसने हमें पैदा किया है। जब हमारा पिता भगवान इतना शक्तिशाली है, तो फिर हम कमजोर कैसे हो सकते? उसने हमें पैदा किया है, तो हमारा सारा इंतजाम भी उसने करके भेज रखा है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, अपने आप पर विश्वास रखना। एवरी पर्सन इज यूनिक। अगर पढ़ाई में थोड़ा दिमाग कम काम करता तो पता नहीं कहाँ निकल जाओगे, किस फील्ड में चले जाओगे। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ सबको जगह मिल जाती है, सबको मंजिल मिल जाती है, सबके सब एडजस्ट हो जाते हैं। जो आदमी मेहनत करता है वो कहीं न कहीं कामयाब होता है, 100% कामयाब होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप को जिम्मेवार समझें और समाज की भलाई में भी हम ध्यान दें। मैं आपका जो ये स्कूल है मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल, ये नाम है ना? तो स्कूल मैंने देखा, आपका बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर स्कूल है, पास में हॉस्पिटल है। तो जो ये परिवार है मिंडा परिवार, इस परिवार ने यहाँ के लोगों पे एक बहुत बड़ा उपकार किया है, इतनी बड़ी संस्था का यहाँ निर्माण किया है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये मिंडा परिवार है, इस तरह के लोग सामान्य लोग नहीं हो सकते। ये लोग जागृत अंतःकरण के धनी हैं। इन्होंने समाज की वेलफेयर को, समाज की भलाई को अपना मकसद बनाया है। तो जब भी हम कहीं प्रोग्रेस करें तो हमें हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि समाज सेवा, समाज की भलाई। एक संस्कृत का श्लोक है, न अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख ताप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। आपके स्कूल में संस्कृत के टीचर भी होंगे। तो न तो मुझे न अहम कामये राज्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न ही मुझे स्वर्ग की इच्छा है, न ही मुझे पुनर्जन्म की इच्छा है। कामये दुख ताप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। मुझे इच्छा है प्राणी मात्र के दुखों का मैं हरण कर सकूं, समाज का मैं भला कर सकूं, सिर्फ मुझे इसी चीज़ की इच्छा है। और यही विचारधारा मन में रख करके मिंडा परिवार ने इतनी बड़ी संस्था का यहाँ निर्माण किया है। मैं ऐसे समर्पित लोगों को सैल्यूट करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मैथ्यू सर, ये हमारे मित्र भी हैं, आईजी ऑफिस में आते जाते रहते हैं। आईजी साहब से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, बहुत ही मेहनती हैं। और जो मैथ्यू साहब की मैडम हैं वो भी प्रिंसिपल हैं न्यू यशोदा स्कूल में,
उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी बहुत विदुषी हैं। और मैं जोशी साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने संस्था को चलाने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे रजत बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, इतना समय दिया हमारी बातें सुनी। और मैं धन्यवाद करूंगा कृष्ण कुमार जी का, और हमारे पास मैडम बैठी हुई हैं आपके इंग्लिश की, रेखा मैडम जी इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो इनका भी बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मौका दिया और बच्चों से बातें शेयर करने के लिए आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं So Kalpana, continue. Thank you, sir. Sure, sir, will definitely strive to act upon your words. Dear youth and all who consumes or try to consume drugs, guys, it's not the sign of being cool or grown up. A good event never ends in the world. They take only a pause and keep us awaiting for the next. Now it's time to pause our good event. I need to multiply thank you word 1,000 times to match it with all the efforts done. I wholeheartedly thank you all. Stay happy, stay strong. Okay. Thank you so much, sir, for sparing आपका precious time spare करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay. And हम please हम आपको स्कूल में भी invite करेंगे, पहले भी आप आया हुआ है, तो we are looking forward to another visit after lockdown. And उस समय हमारा बच्चे काफी questions भी पूछने वाले हैं आपसे. जरूर जरूर सर। थोड़ा सा विलेज में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए दे आर थोड़ा सा रिलेक्टेंट है. So once again, thank you so much for all. I thank Joshi ji also, all, and Mr. Malik, Ms. Rekha, and all those who have organized this one, and all the staff. And students will be having more webinars of this type. We'll be inviting more guests, more professionals, and once again, with a good round of applause, let us thank Sajan Kumar ji for his gracious words. Thank you, sir. Thank you.